Fine, we are on, recording is on, and there was a video I wanted to show to you, so I will just start that video and then we'll continue with your questions if you have any. In Dadaji's younger days, most of the electronic items available in India were products that were manufactured abroad. These goods were available only to a few who received them either as gifts from friends and relatives living abroad or purchased them when they traveled abroad. Most of these foreign-made commodities occupied a space of great pride in most of the Indian homes where they were found. However, today things are different. We find a host of goods ranging from electronics to food items, clothes to footwear, books to cosmetics from all over the world, easily available in our Indian market. What has caused this change? One of the most important factors to cause this change is liberalization. Liberalization is the lifting of barriers and restrictions on foreign trade by governments across the world, thus allowing the opening up of global markets. This opening up of markets has led to the increase in international trade, foreign investments, and MNC participation. The use of modern information and technology solutions has further enabled trade. Now, the remotest areas can be contacted and the required information exchanged instantly. In simple terms, all these factors have caused the different markets of across countries to integrate with one another. This has facilitated the interchange of goods and services between nations. This integration or interconnection between the countries is called globalization. To define it further, globalization is the process of the world becoming interconnected through trade and cultural exchange. As a result, exchange of goods, people, food, information, and ideas across the world has become faster. To encourage this free and smooth flow of international trade, the World Trade Organization, or WTO, was established on 1st January 1995, with its headquarters in Geneva, in Switzerland. In the year 2008, over 153 countries were member nations of the WTO. But what role does the WTO play in the free and smooth flow of trade? The WTO provides the framework for the rules and regulations of international trade and also serves as a platform to settle trade disputes between member countries. It also provides technical assistance and training for developing countries and is in cooperation with other international organizations for the smooth negotiation of trade agreements. It ensures that no barriers hinder trade between different countries. But has it really succeeded? In reality, the unfair implementation of the WTO's rules have forced the developing countries to relax their trade barriers, whereas some of the developed nations have kept their barriers intact. Let's see one example of this. Developed countries give extensive subsidies to its farmers, ignoring the WTO rules and making it easy for their farmers to sell their produce at low prices in the international market. On the other hand, developing countries have been pressurized to withdraw many subsidies earlier given to farmers, who form the major portion of the country's workforce. Hence, these farmers are forced to sell their produce at a higher price in the international market, where they lose out to the sellers from developed countries
selling at much lower rates. This has caused a huge divide between the farmers of the developed and the developing world, where the latter suffer due to the unfair implementation of the WTO guidelines. This has adversely affected the economies of developing countries like India, where the agricultural sector provides the bulk of employment and contributes significantly to the gross domestic product of the country. Think about this and discuss. So, does anybody have any kind of questions regarding this? मैम पूछो. मैम अगर मतलब जैसे इंडिया है तो इंडिया ने बोल दिया कि नहीं हम तो अपने फार्मर को सब्सिडी देंगे, तो उससे कुछ हो जाएगा क्या? देखो, बेसिकली सब्सिडी आती कहाँ से? सब्सिडी पहले तो होता क्या है ये बताओ मुझे. मैम टैक्सेस से आती होगी सब्सिडी. सब्सिडी एक्चुअली वर्ड क्या है? सब्सिडी का मतलब क्या है? पता नहीं. पहले तो वो सर्च करो सब्सिडी का क्या मतलब है, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए या नहीं. नहीं 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 नहीं, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर पुअर पीपल नहीं होता है. अंधेरे में तीर नहीं चलाने. ट्विन टावर, कौन से ट्विन टावर की बात कर रहे हो तुम कार्तिकेय? फूटा था, दैट वाज नॉट एग्जैक्टली ट्विन टावर. और वो फूटा नहीं था, इट वाज अटैक्ड, इट वाज अ टेररिस्ट अटैक. मैम सब्सिडी का मतलब होता है द मनी दैट गवर्नमेंट pays to help an organization or to keep the cost of service low. देखो, अब अगर हमने कहा कि हमें सब्सिडी दी गई है, अगर हम ऐसा कहते हैं हमें सब्सिडी दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल जो प्राइस उसकी पड़ रही थी उसमें गवर्नमेंट ने कुछ कट डाउन किया सो दैट इट विल बी इजियर फॉर एवरीवन टू अवेल दैट फैसिलिटी. गैस पे मोस्टली सब्सिडी दी जाती थी, इन्फ्लुएंशियल हाउसहोल्ड्स को भी सब्सिडी दी जाती थी. फिर अभी रिसेंट में ऐसा ही चला है कि दोज हु कैन पे दे शुड नॉट अवेल सब्सिडी. मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई गरीब घर से है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फार्मर सब्सिडी की बात करें तो उनको सीड सस्ते में मिलेंगे, उनको फर्टिलाइजर सस्ते में मिलेंगे, सो दैट दे कैन बी हेल्प्ड इन व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. अब तुम्हारा क्वेश्चन पूछो तुम. हाँ तो मैम जैसे वो बोल रहे हैं ना कि डेवलपिंग कंट्रीज को मतलब इंडिया को जैसे है तो प्रेशराइज किया जाता है कि आप सब्सिडी मत दो, तो अगर इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं हम तो देंगे, तो उससे मतलब कोई इंडिया को प्रॉब्लम होगी? देखो, सब्सिडी आती कहाँ से है? सब्सिडी है गवर्नमेंट का पैसा, ठीक है. अगर वो सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट खुद जो है नुकसान उठा रही है. गवर्नमेंट अगर नुकसान उठा रही है तो अल्टीमेटली उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम रहेगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. इट इज थिंकिंग मोर अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल रादर देन हैविंग जस्ट मनी. जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है वहां पर जो गवर्नमेंट, क्योंकि भाई वहां पर इतनी जो उनकी पॉपुलेशन है इतनी कम है ना, दे कैन स्पेयर द मनी. वहां पर पता है बेरोजगारी भत्ता मिलता है लोगों को जो फालतू बैठे रहते हैं, बिकॉज दे हैव दैट मच मनी टू स्पेयर. लेकिन हम पर किस चीज का प्रेशर डाल रहे हैं वो, कि तुम यहाँ पर पैसे नहीं डाल के तुम बाकी जगह पर पैसे कम करो. भाई हर कंट्री के ऊपर पता नहीं कितना हजारों करोड़ों का जो है कर्ज चढ़ा हुआ, मतलब किसके कौन दे, मतलब किससे कहाँ है वो लोन एग्जैक्टली के जुपिटर को देने वाले हैं क्या हम लोग अल्टीमेटली? बट ये क्या इकोनॉमिक सिस्टम है. सारी कंट्रीज ये चाहती हैं कि वो जो है जितना जल्दी हो सके एक दूसरे को अपना डेट पे करें. अगर मान लो किसी ने तुम्हें 1000 करोड़ उधार दे रखे हैं किसी कंट्री ने, तो वो ये चाहेगी कि भाई पहले मेरे 1000 करोड़ चुकाओ, तुम क्या सब्सिडी देने में लगे हुए हो. सो दैट इज देयर थिंकिंग बिहाइंड इट. और सब्सिडी से अगर देखा जाए तो इन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का नुकसान ही होता है. एनी अदर क्वेश्चन? लिबरलाइजेशन देख लिया था हमने, WTO अभी देख लिया, फॉरेन ट्रेड देख लिया था हमने. यस और नो? एनीवन? फॉरेन ट्रेड नहीं देखा? No.
Globalization stands for that globalization that is in the benefit of all. थोड़ा हम इसके ऊपर और अभी चर्चा करते हैं. Let's have a look at foreign trade first. Trade takes place. Are you sure ये नहीं हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है ये हो गया. Anyone? हो गया मैम. है ना? अरे भाई जब मैं पूछ रही थी तो मेरे को काहे कंफ्यूज किया तुमने? ठीक है. Foreign trade. ओके ओके. ग्लोबलाइजेशन ये वाला पोर्शन देख लिया था हमने. ग्लोबलाइजेशन एंड WTO. यस और नो? माइक से बताओ मुझे. मल्टीपल टैब्स करूं. अभी हमने यही दिखा क्या? अभी हमने ये एक सेकेंड. ये देख लिया क्या हमने? अभी तो देखा. In has further enabled trade. Have we seen this? मैम यही देखा था अभी. ओके. हाँ भाई ठीक है. No, I'm sending this. ये इम्पैक्ट वाला देखा है या नहीं? अरे बता दो. आई थिंक ये नहीं देखा है ना? यस मैम. नहीं देखा. ओके फाइन. Roughly 2 decades back, Indian towns and cities looked like this. Modern information and technology, improved transportation, and huge inflow of foreign investment due to the new liberal policies has changed the face of India. The introduction of the cellular and internet services has changed the mode of communication. These services now keep the masses updated on the latest developments of the world at just the click of a button. This exposure is shaping people's understanding of the world. With the introduction of modern means of transportation, specially improved aviation policies, air transport has become economically viable, allowing for easy flow of people and goods. Simultaneously, bulk goods can be transported in large containers from one country to another through large container ships at lower costs. With the change in government policies, huge flow of foreign investment has found its way into the country. This has helped to propel economic growth. As a result, the landscape of many a city in the country has changed vastly. This is only one of the indicators of how globalization is impacting our lives. Click the highlighted images to learn more about the impact of globalization in India. Small establishments have been replaced by big industries, largely set up by the MNCs who have invested heavily in fields like electronics, automobiles, fast food, and services like banking. These provide job opportunities to the locals. It is also an opportunity for local suppliers of raw materials to do business with these companies. The small eateries are being replaced by big restaurant chains which have outlets across the world. These usually serve food that can be prepared and served quickly.
The consumers of the country, especially the ones in urban areas, experience several advantages of globalization. With the arrival of multinational brands, they have access to a vast range of clothes, footwear, sports goods, exotic fruits and vegetables, all at their doorstep. The arrival of these foreign goods has led to a stiff competition amongst the manufacturers. These manufacturers have now lowered the prices of their goods while maintaining the product's quality or even improving it in some cases. As a result, the consumers enjoy a better standard of living. An important result of globalization has been the exchange of ideas and cultures. Today, when an Indian businessman visits foreign shores, he is sensitive to their culture and in some instances even carries it back with him to India. Similarly, foreign business delegates visiting India carry back with them the ethnicity and culture of our country. The arrival of the multinational companies has benefited many local companies. These companies are now adopting new technology to better their means of production. In some cases, the local company has even collaborated with the foreign companies. This has given rise to competition in the manufacturing sector, as each company wants to reduce the cost of production and increase profits. Many Indian companies too have acquired stakes in companies overseas and as a result have emerged as multinationals themselves. All is not well with the concept of globalization. While globalization has changed a lot for the wealthier section of the Indian society, the poor are getting poorer because of it. One of the most serious threats is the rise in competition levels among manufacturers of certain goods. For example, the manufacturers of tires in the country have been adversely hit. Many of them have been forced to shut shop as they cannot compete with the products sourced by the MNCs. This results in an increase in the levels of unemployment. Job insecurity is another problem that is a direct outcome of globalization. In order to cut down on the cost of manufacturing, many of the MNCs employ workers only on a temporary basis. By doing this, they can work around the labor laws, as many allowances and privileges can be denied to temporary workers. Since they are temporary workers, they do not have a strong bargaining power, and as a result, they can be made to work long hours or in night shifts, etc. MNCs may also shift their operations to another country where it is cheaper to set up their businesses. This has been the case with a lot of business outsourcing units. This threat of unemployment is always associated with MNCs. Think about this and discuss. So I think that would be all in globalization. इसमें मेन चीज़ें यही है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, वर्ल्ड वाइड इफेक्ट्स क्या है, इंडियन सिनेरियो पे इफेक्ट्स क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स के साथ देख लिया. वो जो अजीब सा हमने वीडियो देखा था कि एमएनसी को क्या फर्क पड़ रहा है, रिटेलर को क्या फर्क पड़ रहा है, दैट कैन बी अ वेरी गुड आंसर, दैट कैन बी अ क्वेश्चन. उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं. फेयर ग्लोबलाइजेशन की जो हम बात कर रहे थे उसमें ये होता है कि एडवांटेजेस शुड रीच टू एवरीवन, नॉट जस्ट द क्रीम ऑफ द सोसाइटी. कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अब अगर मोबाइल से क्लास चल रही है, मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है, इट शुड बी मेड अवेलेबल टू द पुअरर ऑफ द पुअरेस्ट. ठीक है.
और कोई सवाल, एनीथिंग? ठीक है, तो मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म है। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी ऐसा बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। तो जिसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होता उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। यस यस, अनफॉर्चुनेट अभी 2 से 2:30 मेरी क्लास थी और मेरे ख्याल से अगला तुम्हारा सर्कल कब है? 3 से 4, मेरे ख्याल से 4 से 5 वाले में मेरी क्लास है, 4 से 4:40 वाले में। यस यस यस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आई वुड वॉन्ट अ वर्बल कॉन्फर्मेशन। यस एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। तुम लोगों को अभी तक मैंने मल्टीपल असेसमेंट के लिए क्या क्या चीजें दे दी? एक तो मैंने तुम्हें स्टोरी टेलिंग दे रखा है, और कुछ दे रखा है क्या टिल नाउ? मैम चार्ट और वो था ना एक और क्या? चीज। मैप फाइल। बेटा जो मैप फाइल है, मैप फाइल ठीक है, वो मल्टीपल असेसमेंट में काउंट होगी, ऑल राइट। जो चार्ट पेपर है उसके तो अलग से 5 मार्क्स हैं, दैट इज नॉट इन मल्टीपल असेसमेंट, ठीक है। तो और मैम कुछ मैप फाइल हमें अभी बनानी है, कब बनानी है? मैप फाइल तुम्हें बोर्ड एग्जाम के पहले बना के देनी है। अच्छा, वो कभी भी दे दें? देखेंगे, कुछ एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन रफली मैं तुम्हें बोल देती हूँ दिवाली तक जो ये सारा काम करके रख लो। तो मैं दिवाली के मतलब जो भी ज्योग्राफी या हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में तो कोई मैप है ही नहीं, ज्योग्राफी में जितने भी मैप है क्यों वो नहीं बना है, के क्यों रखने नहीं हैं। है? ओ हो भाई 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 भाई, 3 नंबर का मैप हिस्ट्री का है, ठीक है। मैम हिस्ट्री में कहाँ से मैप आ जाएगा? अरे यार, मैं तुम अच्छा लोगों को हाँ ना शेयर मैम, कर हाँ करके समझ, परेशान हूँ मैम मैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में मुझे आ याद गया आ ना? गया। हाँ हाँ। ठीक है। नहीं बेटा, तुम्हें केवल इंडिया का ही मैप है कार्तिकेय, तुम लोगों को केवल इंडिया का ही मैप है। मैंने तुम्हें वो फाइल दिखा दी थी सीबीएसई एकेडमिक पे, देख लो, मैंने शेयर भी करी है यहाँ पे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरे पूरे मैप नहीं टीपने हैं बुक में से, केवल जो चीजें आने वाली हैं केवल उसी की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और उसकी मुझे एक मैप फाइल चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को आराम से दिवाली तक का टाइम दे रही हूँ, दिवाली के बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे वो कब चाहिए, ठीक है। तब तक तुम लोग बना लो अपने दिमाग में कि क्या करना है, कैसे करना है, और मैप फाइल तुम लोग ऑलरेडी एक बार बना चुके हो, सो आई डू नॉट नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर दैट। मैप फाइल हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गई, और तुम लोगों को कुछ बताया है क्या मैंने मल्टीपल असेसमेंट के लिए? मैम इस बार भी मैप फाइल में वो फ्रंट पेज वो सब बनाना है क्या? बेटा देखो, ऐसा है, स्मार्ट वर्क करो, मैंने तुम्हें बार बार कहा है। फ्रंट पेज के बिना तुम कोई प्रोजेक्ट कैसे सबमिट कर सकते हो, प्रोजेक्ट नहीं फाइल? मैम, अब तो अपने नाम से ही व्हाट्सएप पे भेज देंगे ना, तो उसमें फिर क्या नाम वाम बताना। नो, ये तो मैं फिजिकली चेक करूंगी मैप फाइल जो है, क्योंकि जिस हिसाब से आलम चल रहे हैं मुझे तो लग रहा है तुम लोगों का तो शायद फुल फ्लेजेड स्कूल चालू हो जाए, द वे थिंग्स आर गोइंग। तो मैम हमें स्कूल में आके मैप फाइल देनी पड़ेगी? मैंने अभी कोई डेट डिसाइड नहीं करी है, मैंने अभी तुम्हें कुछ बोला नहीं है, तुम अभी बनाओ तो सही, हम देखेंगे समय का तकाजा क्या रहता है। अगर समय का तकाजा रहेगा तो हार्ड कॉपी में चेक करेंगे, और अगर बिल्कुल कुछ पे भी नहीं आती है तो फिर हम सॉफ्ट कॉपी में चेक कर लेंगे, बट मेरी प्रेफरेंस हार्ड कॉपी रहेगी। अभी मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ कि आना ही है या वैसे ही आके देना है, तुम बना तो लो, बना के तो रख लो। इवेल्युएट कैसे करना है वो हम देख लेंगे, जैसा हम सबके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। मतलब तुम्हें मल्टीपल असेसमेंट में और कुछ नहीं दिया है ना अभी तक? मैंने कुछ दिया है तो अभी बोल दो, नहीं तो फिर मैं अभी काम देने वाली हूँ आज, ठीक है। मैंने तुम लोगों को ग्रुप बनाने के लिए कहा था ना, you wanna see a video of history, okay fine, I will try finding a video for you। पहले तुम लोगों का थोड़ा सा मैं ना काम बढ़वाऊं, क्योंकि 9th क्लास ने बहुत मैम अच्छे नहीं, मैम नहीं ग्रुप कहा था प्रोजेक्ट ग्रुप बनाने को। अभी तक नहीं कहा था ना, तो आई विल गिव यू सम टाइम। हम लोग अभी देखते हैं, लीडर्स डिसाइड कर लेते हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट है। मैम मैं और कार्तिक एक ही ग्रुप में है मैम, पास पास में है ना, तो सब बना लेंगे साथ में। वो ठीक है, तुम लोग देख लो, अपने आप को नॉमिनेट करो, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक मैं गूगल फॉर्म का फॉर्मेट बना लेती हूँ। पहले तो ये बताओ लीडर कौन कौन बनना चाहता है?
जो लोग लीडर बनना चाहते हैं यहाँ पे लिख दो चैट बॉक्स में, मैं डिसाइड करती हूँ कि किसे बनाना है। तुम लोग अभी वोटिंग मत करो, अपना नाम खुद बताओ कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ या मैं लीडर बनना चाहती हूँ, क्योंकि अगर फिर तुम नहीं बनोगे तो फिर मैं रैंडमली किसी को बनाऊंगी, और जो लोग अपना लीडर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हमारा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लीडर सिलेक्ट करेंगे। पहले तो बताओ कौन कौन बनना चाहता है, डिसाइड कर लो आपस में। ओके, एक लीडर हो गया सौरभ, और कौन? आई नीड एटलीस्ट 4 ग्रुप। कितने हो तुम लोग? 30 हो, 31 हो ना अभी भी? नहीं, तुम्हारे तो और बनने चाहिए, तुम लोगों के तो 6 ग्रुप बनाऊंगी मैं। नो 6 ग्रुप, 3 लड़कियों के 3 लड़कों के। हाँ मैम, मैथ्स में भी ऐसा ही हुआ था, 3 लड़कियों के बने थे और थोड़े छोटे ग्रुप रहेंगे तो काम सही से होता है। यस, एक तो लीडर हो गया सौरभ, बाकी मुझे 2 लड़कों के लीडर चाहिए, 3 लड़कियों के लीडर चाहिए। देखो अगर नाम नहीं आएगा मैं अपने मन से किसी को भी लीडर बना दूंगी, उसके बाद फिर रोना गाना नहीं सुनूंगी बिल्कुल भी। मैम जो मैथ्स में ग्रुप थे वही बना लेते हैं ना। मैथ्स में कैसे ग्रुप बने बताओ मुझे। मैम मतलब 3 लड़कों के ग्रुप थे और 3 लड़कियों के ग्रुप थे। कौन थे ग्रुप के लीडर? ग्रुप मैम में कौन मतलब कौन है कुछ तो बताओ। मैं था, एक शिवम था और एक जतिन था। शिवम और जतिन अगर बोलेंगे तो मैं उन्हें बना दूंगी ग्रुप लीडर, और नहीं तो फिर मैं ढूंढती हूँ किसको पकड़ना है। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं उल्टे सीधे लोगों को ही बनाती हूँ। हाँ भाई बताओ। बेटा तुम्हें काम नहीं करना है या तुम्हें मार्क्स नहीं चाहिए, मैं जिसके ग्रुप में डालूंगी उसके साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। दैट विल नॉट बी माई प्रॉब्लम कि कौन किसके ग्रुप में चला गया, और सुनवाई तो मैं करती नहीं हूँ, तुम्हें पता है। मेरी बात सुनो, पहले मैं लीडर पूछ रही हूँ, फिर लोग अपने लीडर सिलेक्ट करेंगे अपने आप। प्रोसेस समझो मेरा पहले। जो लोग लीडर बनना चाहते हैं वो बताओ कि मैं लीडर बनना चाहती हूँ, फिर जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं वो खुद अपना लीडर सिलेक्ट करेंगे कि मुझे इसके ग्रुप में जाना है। मैम अब कोई बन नहीं रहा तो आप ही बना दीजिए। मैं तो ऐसे ग्रुप बनाती हूँ, मुझे पता है हु हेट्स ईच अदर, मैं सारे हेट्रेड वालों को एक ही साथ डाल दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। जिन लोगों की बिल्कुल नहीं बनती है उन्हीं लोगों को एक ग्रुप में डालूंगी मैं। ओके, सिंस सौरभ एंड कार्तिकेय एक्सेप्टेड दिस, तो उनकी पसंद का ग्रुप उन्हें मिल जाएगा। सौरभ, कार्तिकेय, अंजन, अनमोल, यू आर ऑल हैप्पी? ठीक है, गुड। इसको कहीं पर एक जगह लिख लेते हैं सो दैट आई विल रिमेम्बर। या एक काम करते हैं, आई टेक माई टाइम, मैं सोच के तुम लोगों के ग्रुप बनाती हूँ, फिर जो जिसके ग्रुप में आएगा वो अपने हिसाब से देख लेगा। और ग्रुप का काम ये रहेगा, तुम लोगों को मिलके बनाने रहेंगे पीपीटीज। पीपीटीज किसके लिए? रिवीजन के लिए। और उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? अगर तुम लोगों को यस तुम्हारा तो नहीं करूंगी, उसका प्रेजेंटेशन ऐसे होगा दैट ऑल ऑफ यू विल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, यू विल ऑल मेक वन पीपीटी, और सब अपना अपना पोर्शन एक्सप्लेन करेंगे, और उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसने मेरे साथ काम नहीं करा, इसने मेरा फोन नहीं उठाया, इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा। सबके कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस प्रेजेंटेशन के बेसिस पर उन लोगों को मैं मार्क्स दूंगी। टॉपिक आई डिसाइड हम लोग रिविजन के टॉपिक्स लेंगे, जितना हो सके हम उसको उतना डायनामिक बनाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स लेंगे, उसके अंदर की अलग अलग चीजें लेंगे। आप उसके अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट यूज कर सकते हो, आप उसके अंदर किसी भी तरीके की अलग अलग चीज यूज कर सकते हो। लेकिन पक्की बात है, मुझे अच्छी तरह पता है तुम लोग इधर उधर से चीटिंग करोगे, कुछ भी कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। इसके लिए तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी यही होगा ऑनलाइन, और जो प्रेजेंटेशन में अटक जाएगा उसे तो मैं सीधे 0 दे दूंगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल। यूनिकनेस के स्पेशल पॉइंट्स रहेंगे। 5 नंबर का ये पूरा काम, 10 नंबर का पूरा काम पकड़ा रही हूँ, उसमें से 5 नंबर केवल यूनिकनेस के रहेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है। नहीं टॉपिक यूनिक कैसे दूंगी मैं बेटा, मैं तुम्हें टाइम ट्रैवल तो दे नहीं सकती, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सो व्हाटएवर इज इन द सिलेबस उसके अंदर मैं काम करके देती हूँ। ठीक है, आई विल मेक द ग्रुप्स, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास।
And I think that will be all for today's class. Thank you and sign off.